اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کویت میں ایک بلڈنگ میں بھیانک آگ لگی، جس میں 49 لوگوں کے مرنے کی اطلاع ہے، اور ان 49 مہلوکین میں 40 لوگ ہندوستان کے بتائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افسوس کا اظہار کیا، شردھانجلی تعزیت پیش کی، اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہندوستانی سفارت خانہ ہر مدد کے لیے تیار ہے۔ وہیں پر خبریں ہیں کہ کویتی حکومت نے عمارت کے مالک کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جنوبی کویت میں ایک عمارت میں زبردست آگ لگنے سے 40 ہندوستانیوں میں 41 افراد کی موت ہو گئی۔ اس بھیانک آگ کے واقعے میں عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس عمارت میں آگ لگی وہاں مزدور رہتے تھے۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ بدھ کی صبح پیش آیا۔ کویت کی حکومت نے اس خوفناک آتش زدگی کے لیے ریئل اسٹیٹ کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس افسوسناک واقعے میں 15 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، وہیں درجنوں افراد کو بحفاظت نکالنے اور بچانے میں کامیابی ملی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ این سی پی کے سپریمو سربراہ ماننیہ شرد جی پوار کا بیان آیا ہے کہ 4 مہینے میں حکومت کا تختہ پلٹنا ہے۔ این سی پی سپریمو شرد پوار کے بیان سے اب راجنیتک حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ وہیں پر شرد جی پوار نے یہ بھی کہا کہ دودھ پر اگر سبسڈی نہیں ملی تو سڑکوں پر اترنے کی اپیل بھی شرد پوار نے جنتا سے کی ہے۔ مہا وکاس اگاڑی نے لوک سبھا انتخابات میں اچھی کامیابی حاصل کی ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں کامیابی کے بعد مہا وکاس اگاڑی کی اتحادی جماعتوں نے اسمبلی انتخابات کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ اس درمیان شرد پوار کے ایک بیان نے سیاسی حلقے میں کھلبلی مچا دی ہے۔ شرد پوار نے کہا کہ 4 مہینے کے اندر حکومت کا تختہ پلٹنا ہے۔ شرد پوار نے نروانگی کے گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ 4 سے 6 مہینے میں حکومت کا تختہ پلٹے گے اور فیصلہ سازی کا اختیار آپ لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس طریقے سے انہوں نے بات کہی۔ اس کے ساتھ ہی پوار نے کہا کہ اگر دودھ پر سبسڈی نہیں ملتی ہے تو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار رہو، میں خود سڑکوں پر نکلوں گا۔ شرد پوار نے خشک سالی کا معائنہ کرنے کا دورہ شروع کیا ہے۔
आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है कि जम्मू कश्मीर में इन 72 घंटों के बीच, इन 72 घंटों के दौरान 3 दहशतगर्दाना हमले हुए हैं। एक जवान और 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। पूरे सूबे में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर तलाशी ऑपरेशन भी जारी है। मिस्टर राहुल गांधी और तमाम अपोजिशन पार्टियां साफ तौर से ये चिल्ला रही है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से नाकाम और फ्लॉप है, और 370 के हटाने के बावजूद भी कश्मीर में अमनो अमान का माहौल बाकी नहीं है, और मोदी सरकार पूरी तरीके से कश्मीर को संभालने में नाकाम है। उद्धव जी ठाकरे ने भी साफ तौर से ये कहा है कि अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कश्मीर अब तक नहीं संभला है तो इन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जम्मू सूबे में बढ़ते हुए मिलिटेंट हमलों के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में 3 बड़े मिलिटेंट हमले हुए हैं, जिनमें 9 यात्री, एक सीआरपीएफ जवान मारे गए हैं, जबकि 35 यात्री, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं। कठुआ में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक अदमशनाख्त मिलिटेंट भी मारा गया है। और आपको याद होगा कि 2 दिन पहले किस तरीके से श्रद्धालुओं की बस पर भी हमला किया गया। यानी मोदी सरकार 56 इंच का सीना और चौकीदार अपने आप को कहने वाला पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू आजकल बड़े चर्चा में है, क्योंकि इन्हीं की बैसाखी और इन्हीं के सहारे पर नरेंद्र मोदी कुर्सी की एक टांग खड़ी हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने गुज़िश्ता कल वजीर आला सीएम पद का हलफ लिया। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर शपथ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, रामदास अठावले, एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल, अदाकार रजनीकांत और कई दीगर अफराद ने इस हलफ बर्दारी के प्रोग्राम में शिरकत की। हलफ बर्दारी की यह तकरीब विजयवाड़ा के मज़ाफ़ात में पेश आई। एयरपोर्ट के करीब सुबह 11:30 बजे ये तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने चंद्रबाबू को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के नए वजीर आला के तौर पर अब हलफ लिया जाएगा। हलफ बर्दारी की तकरीब कल ईटानगर में राजभवन के दरबार हॉल में होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने बुध को कहा कि नए वजीर आला और उनकी वज़रा की कौंसिल सुबह 11 बजे पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष की मौजूदगी में हलफ लेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, फिल्मों के बड़े कामयाब बॉलीवुड के अदाकार नसीरुद्दीन शाह, जिन्होंने जो भी रोल निभाया है बड़ी कामयाबी के साथ उस रोल को अदा किया है। खबर आ रही है कि नसीरुद्दीन शाह बीजेपी को अक्सरियत बहुमत न मिलने से बहुत खुश है। वैसे तो तकरीबन पूरा हिंदुस्तान खुश है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह के बारे में खबर आ रही है कि नसीरुद्दीन शाह बीजेपी को बहुमत न मिलने से बहुत खुश है। नसीरुद्दीन शाह ने लोकसभा इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम मोदी ये बात मान चुके थे कि वो ताहयात जिंदगी भर वजीर आजम रहने वाले हैं। अब पीएम मोदी के लिए इत्तेहाद वाली हुकूमत, गठबंधन वाली हुकूमत चलाना एक कड़वी, एक तल्ख दवा लेने खाने जैसा है। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा कि जब उन्हें पता चला कि बीजेपी को अपने दम पर लोकसभा इंतखाब में अक्सरियत नहीं मिली और गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के मुकाबले उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं की, तो उन्होंने राहत की ठंडी सांस ली। इस खबर से वो बहुत खुश हुए। ये बातें नसीरुद्दीन शाह ने दी वायर को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही है। आइए नाज़रीन, अब एकनाथ शिंदे का भी बीजेपी की हार को लेकर बड़ा बयान आया है। जी हाँ, इससे पहले अजीत दादा पवार का बयान हमने आपको सुनाया था कि उन्होंने भी यही कहा था कि बीजेपी को उसका अहंकार और घमंड, मोदी जी को उनका घमंड ले डूबा। अब खबरें आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा था, वो 400 पार का नारा बैकफायर हुआ। उन्होंने कहा कि बाज़ इलाकों में एक मनफी बयानिया इस नारे को लेकर तरतीब दिया गया
کہ 400 पार इसलिए ये मांग रही है बीजेपी कि आइन को तब्दील करेंगे और 400 पार का हदफ उससे जोड़ा गया जो कि नताइज पर जबरदस्त असर अंदाज हुआ। महाराष्ट्र के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने इस बात का इजहार करते हुए कहा कि लोगों ने इसे जहन में रखा और इसका उल्टा फायर हुआ, उल्टा असर हुआ। बीजेपी की गाड़ी 400 नहीं 300 को भी पार नहीं कर सकी और कई रियासतों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, राहुल गांधी, आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त लोगों के दिलों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा राज कर रहे हैं। एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी हारते हारते जीते हैं, यानी वजीर आजम जो सबसे बड़ा नेता है मुल्क का, 1.5 लाख वोट से जीतना उसके लिए कोई जीत नहीं होती है, एक किस्म की हार ही होती है। लेकिन एक तरफ आप राहुल गांधी को देखिए कि राहुल गांधी को लोगों ने इतना चाहा कि 2 जगह से राहुल गांधी खड़े रहे, रायबरेली और वायनाड, और दोनों जगह से राहुल गांधी भारी मतों से जीत कर आए हैं। अब राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है कि मैं तजब्जुब में हूं कि रायबरेली को छोड़ूं या वायनाड को छोड़ूं। उन्होंने कहा, उन्होंने केरला के वायनाड और उत्तर प्रदेश के रायबरेली पार्लिमानी सीट से लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और ज़ाब्ते के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि वो लोकसभा में किस सीट की नुमाइंदगी करें। मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने तजब्जुब का इजहार करते हुए कहा, मेरे पास एक मसला है कि मैं वायनाड की नुमाइंदगी करूं या रायबरेली की नुमाइंदगी करूं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पंजाब से। जी हाँ, कैथल में, कैथल एक इलाका है, वहां शरपसंदों ने एक सिख नौजवान पर जबरदस्त अंदाज में हमला किया। इस हमले को लेकर पंजाब के साबिक वजीर आला एक्स सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के घटिया बयानात पंजाब को लेकर और कंगना के घटिया बयानात की वजह से अब सिख नौजवानों पर हमला हो रहा है। कंगना ने जिस तरीके से और बीजेपी ने जिस तरीके से कहा कि पंजाब में, कंगना ने कहा कि पंजाब में खालिस्तानी जन्म ले रहे हैं और खालिस्तानी पढ़ रहे हैं, तो लोगों के बीच में पंजाबियों को लेकर एक नफरत पैदा की है कंगना के बयान ने। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि कैथल में सिख नौजवान पर हमला हुआ है, यह दरअसल बीजेपी की घटिया नफरत फैलाने वाली पॉलिसी है और इसी वजह से ऐसे हमले हो रहे हैं। पंजाब में किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। कंगना रनावत ने बयान दिया है कि यहाँ के सिख खालिस्तानी हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, बाहमी उखवत और मोहब्बत है। पंजाब में कभी हिंदू सिख लड़ाई नहीं हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी ने मजीद कहा कि मैं रियासत से बाहर रहने वाले लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील करता हूं और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि इस वाक़े को अंजाम देने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए, उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। और उन्होंने जनता से भी कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि आपस में भाईचारा और मोहब्बत बरकरार रखें। बीजेपी और कंगना रनावत के घटिया बयान को उन्होंने नफरतों के फैलने की वजह बताई है। नाजरीन, सलमान खान फायरिंग केस को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में सलमान खान का बयान रिकॉर्ड किया। अब मुंबई पुलिस 14 जून को अदाकार के भाई अरबाज खान 4 जून को अदाकार के भाई अरबाज खान का बयान दर्ज कर चुकी है और अब सलमान खान का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बांद्रा में वाक़ कॉम्प्लेक्स गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के मामले में गुज़िश्ता कल अदाकार सलमान खान का बयान रिकॉर्ड किया है। पुलिस ने 4 जून को उनके भाई अरबाज खान का बयान भी रिकॉर्ड किया था। फायरिंग का यह वाक़या 14 अप्रैल को पेश आया था। उसके बाद की गिरफ्तारियों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक का
इंकशाफ हुआ, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने शूटिंग में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका का मुतालबा किया था। कबल अजी पुलिस ने कहा था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को तरगीब देने में कलीदी रोल अदा किया था। 15 मार्च 2024 को पनवेल में हथियारों की तरसील मौसूल होने के बाद अनमोल ने शूटरों को टारगेट की मालूमात फराहम की, उन्हें अदाकार की रिहाइशगाह पर फायरिंग करने की हिदायत दी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, 4 जून को लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट जैसे ही आया, उस वक्त से अब खबरें आ रही है कि नरेंद्र मोदी राम और अयोध्या दोनों को भूल गए। अब जय जगन्नाथ का नारा लगना शुरू हो गया, क्योंकि उड़ीसा में उन्हें 22 में से 21 लोकसभा सीटों पर कामयाबी मिली और रियासत उड़ीसा में बीजेपी की हुकूमत कायम हो गई। लिहाजा उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ का नारा अब मोदी जी की जबान से निकल गया और फैजाबाद की सीट चूंकि बीजेपी हार गई, इसलिए राम और अयोध्या अब मोदी जी सब भूल गए, जिससे यह पता चल रहा है कि मोदी जी को राम और अयोध्या से कोई लेना देना नहीं था। राम और अयोध्या सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राम जी ने जूता मारा और अयोध्या से बाहर निकाल कर फेंक दिया, तो अब मोदी जी की जबान से राम भी खत्म हो गया और अयोध्या भी खत्म हो गया। और अब माना जा रहा है कि अयोध्या के ताल्लुक से गोबर भक्त, जी हां, बीजेपी भक्त और अन्य भक्तों ने जो अयोध्या वालों को गालियां देना शुरू की और शिकायतों का अंबार अयोध्या में लग गया, इस पर नरेंद्र मोदी ने जबान खोली भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं है, जबकि अयोध्या वालों के बायकाट का भी ऐलान हिंदुओं की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन मोदी पूरी तरीके से खामोश है। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लेकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी एवं मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।